can be sort of an motivation for a lot of people out there. We will try our level best to kind of continue, because I'm not sure, it's raining here in Mumbai and I think Om is from Yavatmal. So I'm not sure कब तक चलेगा. अगर connection ने साथ दिया तो I think we can go for like 20-30 minutes का session. Yeah. But guys, very interesting story. Very interesting story. ये इस बंदे को आपको सुनना चाहिए. You have to listen to him. Deadly motivation. I'll give you a little background as far as Om is concerned. पहली बात, let me kind of clear this to you. Om is not my student, ठीक है? तो ओम ने C2 से मेंटर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, उसने कोई हमारा पेड प्रोग्राम भी बाय नहीं किया था. So I'm going to be genuine here. But Om did follow me. He followed my YouTube channel, and I got to know about him last like 2 weeks before, when he called me up and when he told me, sir, this is my story that I got 98 percentile. And what was shocking for me is that he comes from a small town, and definitely he comes from a sort of a farmer sort of a background. And he had to go through a lot of hardship for his education. बंदे को 31 percentile आया था. बंदे को 31 percentile आया था, ठीक है? तो 31 percentile कैट में आया, CMAT में 85 percentile आया, और CET में 98 percentile आया. मतलब graph has gone up exponentially. So here is Om for you. Om, kindly थोड़ा सा बता देना, आपकी प्रोफाइल बता देना. Yes. और कैसे कैट के लिए प्रिपेयर किया, आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी थी CET के बारे में, थोड़ा सा हमको ब्रीफ कर देना. Okay, sir. So I would like to take a moment, for appreciating your efforts, sir. Finally, your videos, which were damn inspiring for the student like me, who belong to basically remote areas and all. And I would also like to thank you for inviting me here. So you deserve it, actually. You deserve it. Thank you, sir. Thank you. So basically, I was born here in the village only, and then we shifted to this small town, neighbor town, Pusad. And after that, I did my schooling there only, in Pusad only. And उसके बाद मेरा 12th भी वहाँ से ही हुआ. And after that, I got 88% in 10th and somewhere around 75% in 12th standard from state board only. Yeah. So after that, I did. तुम्हारा background क्या था? 10th 12th vernacular था कि English medium, कैसे था, मतलब? English medium, a sort of English medium. अच्छा ठीक है. Nice. Okay, nice. Okay, so after that, I get admission into this SGGS Nanded, Shri Guru Gobind Singh Ji College of Engineering and Technology, Nanded. Yeah. You did your engineering. तो तुमने engineering किया. Okay. Yeah, I did my engineering, and I did my engineering in chemical engineering basically. अच्छा. So I'm an chemical engineer basically. अच्छा, chemical engineer. हाँ. So उसके बाद हुआ है कि I was always confused कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे करके. Like मैंने कभी मेरे इतना confused बंदा मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा. बहुत कंफ्यूज था समय, क्योंकि मुझे ये मैं वीडियोस स्टडी करता था गेट की, वीडियोस देखता था MBA के, और ड्रीम देखता था IAS ऑफिसर के. मतलब जेट की पढ़ाई, वीडियोस MBA के, और ड्रीम था IAS ऑफिसर. यस, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन कनेक्ट टू दैट एनीवे. बोलो. हेलो, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करेंगे. अच्छा. तो उसके बाद हुआ है कि इन माय फाइनल ईयर आई डिसाइडेड टू ऑप्ट गेट. ओके. Om, can you hear me? Om, can you hear me? I think there's a connection problem. I think there's a connection problem. I'll wait for a couple of seconds. Let me see if he gets the connection. If he gets the connection, then it can start automatically. Let's wait for some time. I'm not sure because it's raining at both the end. Let's see. Hello. अच्छा, अभी आवाज भी आ रही, दिखाई भी दे रही. चलो, let's continue. अच्छा, so like I was not ready for UPSC demanding what UPSC demands. चलो sacrifices होते हैं वहाँ पे, बहुत सारा मतलब आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए हार्डशिप फेस करने के लिए रेडी नहीं था. Then I thought कि नहीं यार, MBA is the best option, because मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे कि you have that kind of like speaking skills and all, you have that kind of expressional attitude and all, so you should go for MBA. So I started thinking on that
सीरियसली एंड उसके बाद मैंने दो महीने कुछ तो भी जॉब भी किया एंड आई डिडंट लाइक दैट जॉब। देन मैं शायद अक्टूबर में पुणे में भी आया था, तो वहां पे मैंने हाँ C2C मेंटर्स के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन बहुत अच्छा बारिश हो रही थी तो मैं सोचा नहीं यार चलो यार अच्छा, अब डायरेक्ट फाइनेंशियल अपने को इशू कुछ नहीं। अच्छा, हाँ ओके, हाँ नो तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसी वक्त मैं आपके वीडियोस के कांटेक्ट में आया, तो अच्छा आई स्टम्बल्ड अपॉन योर वीडियोस एंड अच्छा देन आपकी तब वीडियो चालू थे टेस्ट सीरीज के, और इधर मुझे पता भी नहीं था यार कैट होता क्या है। अच्छा तो अच्छा हाँ, तो पहले 10 दिन तो मैंने कैट होता क्या है यही समझ में लगा है आपकी वीडियो से ही, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वर्बल डायरेक्ट। हाँ, सोचा कि सीधा क्वांट वर्बल। वगैरह ये इतने जल्दी होने वाला नहीं है। हाँ, सीधा वर्बल के लिए और उस पे भी मैंने आपके वीडियोज ही फॉलो किए थे। आपका एक अच्छा वीडियो था कुछ तो भी कैट कैट वर्बल का, ओके मैंने वो देखा और सिर्फ कैट 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 की सॉरी वर्बल की प्रिपरेशन किया 2 महीने, सॉरी प्रिपरेशन स्टार्ट। 20 कैट सो प्रिपरेशन चालू हो गया। कैट वाज ब्लंडर फॉर मी क्योंकि वर्बली प्रिपेयर किया था और वर्बल इतना गंदा आया था इस साल, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था वर्बल। अंडरस्टूड, वर्बल वाज हॉरिबल, 2019 हॉरिबल का रिप्लाई वर्बल किया बहुत था। खराब था यार। तो चलो यार सोचा कैट तो ब्लंडर हो गया, तो उसके बाद मैंने वेट नहीं किया रिजल्ट का हो गया, कुछ भी अच्छा वेट नहीं किया। उसके बाद ही मैं उसके बाद ही शायद से मैं आपसे कांटेक्ट लाइक आई वाज इवन आई वाज नॉट एबल टू कांटेक्ट यू एट दैट टाइम, आई नो। बट हाँ हाँ तो मैंने आपके वीडियोज जो थे पास्ट ईयर्स के, क्योंकि उस वक्त सीटी का माहौल राइट चालू नहीं हुआ था, तो राइट। पास्ट ईयर्स के जो आपके सीटी के वीडियोज थे वो देखना चालू कर दिए। अच्छा, देन तो हाँ पहली बात जब तुझे पता चला कि मेरे को 31% मिला यार, मतलब कैट में, हालत कैसा था तुम्हारा? मतलब व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? इतना बुरा एक्सपेक्ट किया था? सर मैंने कभी 31% मतलब कभी अगर 50 मार्क्स का भी पेपर हो तो उसमें 31 नहीं, उसमें डायरेक्ट 45-46 आया, ये आई नो, 31 था दैट्स मतलब। राइट, दैट्स इट राइट। वाज शॉकिंग फॉर मी आल्सो कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, डायरेक्ट 31 परसेंटाइल वो भी कैट में। ठीक है 50 क्रॉस हुआ तो अच्छा भी होता, मतलब कुछ तो भी रहता, लेकिन 31 इट वाज ब्लंडर फॉर मी, या ओके, इट वाज ब्लंडर फॉर मी। so तो now here is a story, you know, this is where the story begins. जब 31% आया, you are a decent student, there is no doubt about it, you just scored very well in 10th and हाँ 12th. तूने गेट के लिए भी आपने प्रिपेयर किया, कैट आपने दिया था। आई मीन गेट इज आल्सो एन एग्जाम व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अ टफ एग्जाम, इतना इजी नहीं है गेट का प्रिपरेशन। और गेट के प्रिपरेशन के लिए यू नीड अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, राइट? यस सो यस ग्रेट। तो वहां से जब कैट में गया तो जाहिर सी बात है यार, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है कि यार 31% मतलब दैट्स लाइक व्हाट, लाइक हॉरिबल। तो वहां से तूने मेरे ख्याल से हाँ हाँ सीमैट हाँ दिया, सीमैट में 85 आया, और 85 से फिर तू जंप किया 98% सीट में। यहाँ पे हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि वो मोटिवेशन क्या था, कैसे प्रिपरेशन किया? So motivation was my parents only, who were they always supporting me. I was seeing them, working so much hard for me, and motivation कुछ तो भी like it was from my past also कि चलो यार मतलब 12th में जेई दिया था, कुछ हुआ नहीं था, कोई तो भी लोकल कॉलेज में यार इंजीनियरिंग करनी पड़ी, तो this time I don't want to compromise on myself. So एग्जैक्टली ये भी एक मोटिवेशन था कि चलो यार we want to get outside of this whatever circumstances we are in. So ये एक बड़ा मोटिवेशन था कि नहीं यार मुझे आगे बढ़ना है so whatever happens, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। एंड सेकंड वाज माय पेरेंट्स, who were there always for me, ये एक मोटिवेशन था बहुत बड़ा। So हाँ, so after CAT sir what I did, I jotted first at all, I think I solved past year paper of CET, past ओके year paper of CET 2018 हाँ, so ओके just to know what are my strong points and weaknesses are, and from that then I noticed, I jotted down all my weaknesses, and I compared with the CT actual syllabus, and what I found is यार मेरे सभी topics weak है। तो हाँ, so उसके बाद सोचा कि चलो अब लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करके, क्योंकि वही एक ऐसा है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो तो क्या हुआ कि आपके वीडियोस थे लॉजिकल रीजनिंग पे कुछ तो भी, सबसे पहले तो मैंने वो आई वॉच देम एंड डिसाइडेड कि कौन से टॉपिक्स जो है वो वेटेज कैरी ऑन करते हैं सीईटी में। ओके। हाँ हाँ, एंड मोस्ट ऑफ द सीईटी सिलेबस इट वाज कवर्ड बाय एमबीए प्रिपरेशन एंड ऑल, सॉरी बैंकिंग प्रिपरेशन एंड ऑल, बैंकिंग बैंकिंग, बैंकिंग का प्रिपरेशन बहुत थोड़ा था। हाँ, तो मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किए लॉजिकल रीजनिंग के वगैरह टॉपिक्स, और उनके जो कुछ भी थे वो क्वेश्चंस एंड ऑल, वहां से मैंने लॉजिकल रीजनिंग कर दिया। ओके। हाँ तुझे प्रिपरेशन में कभी ऐसा लगा हो कि यार, यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया,
खाली मोबाइल फोन पे तुमने पढ़ाई किया, जो भी था इंटरनेट, थैंक्स टू जियो एंड ऑल, जिसकी वजह से इंटरनेट अभी इजीली मिल गया है ना? तो तुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि यार कि छोटे टाउन से है, ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, ज्यादा मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं है, कोचिंग नहीं है, बॉम्बे, पुणे, नासिक, नागपुर के बच्चे फाड़ होते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग लगाते हैं, 2-2 3 दिन टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वो कभी तेरे को ऐसे डिमोटिवेशन नहीं होता? तुझे नहीं लगा कि यार मैं तो भाई स्टैंड ही नहीं करता कंपटीशन में? तुझे कभी ऐसा लगा? ऐसा तो लगा नहीं, बट एक कभी जब भी डिमोटिवेट होता था ना सर, तो मैं आपका जोश टॉक पे वीडियो आया था सर, इट वाज सीरियसली सर, आपका जोश टॉक पे वीडियो मैं आपको फॉलो करता था, इट वाज तो लाइक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि चलो यार, मतलब सर मुंबई से आके, मतलब आपने जो आपका स्ट्रगल बताया, तो आई कैन रिलेट समवेयर लाइक माय स्टोरी विथ यूअर्स कि चलो यार, मतलब सर भी कर सकते तो हम भी कर सकते, तो ट्रू। हाँ, तो वैसा ही मतलब, और अगर कैसा मैं सब सोचता था कि यार मुझे सिर्फ एक सीट लेना है, आई डोंट डैम केयर अबाउट व्हाट, आई जस्ट वांटेड वन सीट एंड हु एक्स, जस्ट एक सीट मुझे लेना है, तो ये एक था बाकी। परफेक्ट। तो स्ट्रैटेजी क्या था सीईटी का? सीईटी में आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विजुअल कैसे किया आपने, वर्बल कैसे किया, क्वांट्स कैसे किया, पजल्स, बिकॉज़ पजल्स का बहुत बज होता है, राइट? सो यू स्कोर 98 परसेंटाइल, इट्स अ डिसेंट परसेंटाइल, बिकॉज़ जिस सिचुएशन में तूने पढ़ाई किया है, थोड़ी सी अगर ज्यादा कैटाफिनो सपोर्ट मिल जाती तो मेरे ख्याल से जेबी इज नॉट दैट फार फॉर यू, एंड आई एम वेरी श्योर तुम रिपीट कर रहे हो इस बार। तो उसने मुझे कहा कि नहीं सर, मुझे इस बार रिपीट करना ही है, इस बार आई एम गोइंग टू जॉइन C2C and I'm going to repeat, and it makes a lot of sense because 98 and 99.9 99.94 अगर बंदे में कॉन्फिडेंस है, करने की अगर इच्छा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, सो डेफिनेटली यू गोना रिपीट दैट, नो डाउट। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी, कैसे चालू करा था प्रिपरेशन? ओके सर, सो आई विल गो सेक्शन वाइज बेसिकली। सो सबसे पहले तो पजल्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आफ्टर माय कैट व्हाट हैड हैपेंड कि आई कांटेक्टेड माय फ्रेंड्स हु हैड गिवन सीईटी लास्ट ईयर। सो उन्होंने बताया कि यार देख यार, पजल जो है ना वो गेम चेंजर है, अगर तुझे जेबी में जाना है तो तुझे पजल से करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो यार, सब बोलते तो हम भी कर देते, मुझे तो पता भी नहीं था कि पजल होते क्या है। तो पजल होते क्या है, और उसके बाद सर बिलीव मी, इन दिसंबर मंथ ओनली आई हैड नियरली सॉल्व 300 to 400 पजल मैंने सॉल्व किए। अरे बाप रे। हाँ, 300 to 400 पजल मैंने सॉल्व किए। अब ये अलग बात है कि हाँ, ये अलग बात है कि सीईटी में उसका कुछ यूज नहीं हो, क्योंकि सीईटी के पजल्स भी ब्लंडर थे। हाँ, तो उसके बाद हुआ है कि आपका जानवरी में कुछ तो भी एक वीडियो आया था, जनवरी फरवरी में, ब्लॉक लॉक्स फॉर सीईटी एंड ऑल, उसमें आपने सबसे पहला कोई पॉइंट उठाया तो वो पजल्स था। राइट। और आपने लास्ट ये बोला था कि पजल्स को हाथ मत लगाना, और मैं बिलीव मी सर, मैंने यही किया। हेलो, हाँ, तो मैंने पजल्स को हाथ भी नहीं लगाया, लास्ट पेपर में भी हाथ भी नहीं लगाया। तो चलो पजल तो हो गया। हाँ, तो उसके बाद कॉन्स पे आते हैं। बीइंग एन इंजीनियर सबको लगता है कि कॉन्ट उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इट कैन बी देयर फोटा एंड ऑल, बट मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं था। आई ऑलवेज हैव दैट फोबिया ऑफ कॉन्ट बेसिकली। तो हाँ, तो कॉन्ट का कुछ ऐसे टॉपिक थे जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो मैं 12th से करके आया था फिजिक्स में भी, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट्स एंड ऑल में भी। तो वो टॉपिक जो थे मुझे अच्छे लगते थे, तो मैंने उस पे अपनी ग्राफ्स बना के रखे। और सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता था परसेंटेज, बिकॉज डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो वो बताए तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बहुत ज्यादा लाइक मेरा हार्ड वर्क जो था, मैंने आई एम्फसाइज मोर ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। DI was the game changer, no doubt. That हाँ, DI series and equations. So whatever marks I will be getting I got in CET, basically they are from these sections only, like series, equation and data interpretation. Okay, आपने visual कैसे रीजनिंग का तो मैंने बताया, मैंने सारा यूट्यूब पे किया वाला लॉजिकल। हाँ, सर आपका एक वर्कशॉप का वीडियो था यूट्यूब पे विजुअल का। अच्छा, YouTube पे जो फ्री वाला डाला था। हाँ, वही। और उसके बाहर से विजुअल कभी आएगा ही नहीं। मैं तो लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने एक ही वो वीडियो देखा, पास्ट ईयर्स पेपर लगाए, बस मैंने विजुअल के जाते। वो आपका वीडियो मैं तो लाइक देखना चाहिए, अगर किसी को विजुअल में लाइक 25 आउट ऑफ 20 कमाना है ना, उसके ऊपर कि यार बहुत क्लास से करके, मतलब 18-20 मार्क्स तुम्हारे बन जाएंगे उस वीडियो से। अच्छा, तो यू सॉ दैट आल्सो? अच्छा, ये मुझे नहीं। और उसमें से आपने जो शॉर्टकट्स बताए थे, लाइक a = e देन आंसर विल बी b। हाँ, तो ये शॉर्टकट सर मतलब
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एटलीस्ट विजुअल में भी, क्योंकि दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स बेसिकली, जैसे Exactly. आपके आपके लैंग्वेज में दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड दे कैन स्कोर लाइक they help you to score 99 percentile and not, because True, visual man. is the game changer basically. So coming back to verbal, yeah, verbal, uh, verbal के बारे में तो सर मतलब सबको फोबिया होता है कि वर्बल बहुत टफ है। सीटी में बच्चों को फोबिया होता है वर्बल का, हाँ, बहुत डरते वर्बल हैं। का आई डोंट नो बहुत, व्हाई, बट हाँ वर्बल इज द गेम चेंजर में ऑलवेज। हाँ हाँ हाँ। एंड सर आप तो दिसंबर से कहते थे कि यार अगर आपको सीईटी में कुछ करना है तो वर्बल पे ध्यान, क्योंकि वर्बल इज द गेम चेंजर, वर्बल विल आइदर मेक यू और वर्बल विल आइदर ब्रेक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट को कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन वर्बल देन यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फोबिया वाला थिंग कि वर्बल टफ है। राइट, वर्बल टफ नहीं है, वर्बल लेंदी है बेसिकली। एग्जैक्टली, हाँ, सही है, एंड सही इफ है। लेंथीनेस इज द प्रॉब्लम देन आई मस्ट से देयर इज द सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर स्ट्रेटजीज ओनली। मैं तो उसके, हाँ, योर स्ट्रेटजीज ओनली, क्योंकि मुझे पता था, मैं जब पास्ट ईयर पेपर्स लाइक आईबीपीएस एसबीआई के मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए थे 10 इयर्स के। ओके, हाँ, तो जब मैं पास्ट टेस्ट पेपर सॉल्व करता तो मैं उसमें रीडिंग कंप्रेशन वाला सेक्शन है वो मैं कभी सॉल्व नहीं करता था। ओके, हाँ परफेक्ट। हाँ, तो उसके बाद हुआ है कि आपका वीडियोज आया था हाउ टू क्रैक वर्बल सेक्शन करके, और उसमें आपने स्ट्रेटेजी बताई थी स्पेसिफिकली एम्फेसाइजिंग और रीडिंग कंप्रेशन। राइट, हाँ, तो उसमें आपने 2 स्ट्रेटेजी बताए थे, तो मैंने पहली आपकी ये थी कि चलो फर्स्ट लाइन पढ़ लो, दूसरी लाइन पढ़ लो, ट्राई टू गेट द जीस्ट ऑफ दैट पैराग्राफ, एंड उसके जो रिलेटेड में जो क्वेश्चन है वो आप टिक कर दो। राइट, हाँ, राइट, ये एक परफेक्ट। स्ट्रेटेजी थी। हाँ, और आपकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी जो मुझे काम में आई, व्हाट आई जो मैंने एक्शन में लाई मेरे, तो वो ये थी कि फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो और व्हाट आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैराग्राफ वो आप वहां पे टिक करो, देन गो टू सेकंड पैराग्राफ, व्हाट आर क्वेश्चंस आर देयर रिलेटेड टू सेकंड पैराग्राफ वहां पे टिक कर दो। तो परफेक्ट, इस, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। हाँ, तो इससे होता ये था कि इफ यू आर लिमिटिंग रीडिंग कंप्रेhension टू सम टाइम, देन उस टाइम में नहीं आपके महीने ही कहूंगा कि आपके पूरे सॉल्व होंगे, बट एटलीस्ट आपके 10 to 12 मार्क आपके हैंड में है, आपके हाथ में है। वेरी वेरी शॉर्ट शॉर्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी हाँ, ट्रू। तो वो ही मैंने किया, आपकी वो स्ट्रेटेजी मैंने सॉल्व की। ओके, आफ्टर दैट कमिंग टूवर्ड्स पैरा जंपर्स तो हो जाते हैं, पैरा जंपर्स का भी आपका वीडियो है हाँ रिगार्डिंग कैट है। वो हाँ, रिगार्डिंग कैट वीडियो है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पैरा जंपर्स सबके सेम ही होते हैं, लाइक व्हाट यू ट्रू, नीड टू ट्रू, हाँ, व्हाट यू नीड टू हैव इज फर्स्ट सेकंड रिकॉग्नाइजेशन, कनेक्टर्स आर देयर, प्रोनाउंस आर देयर, ये पैरा जंपर्स सेम ही होते हैं, तो पैरा जंपर्स ज्यादा कुछ प्रॉब्लम का नहीं है, बट क्लोज टेस्ट, हाँ, क्लोज नाउ टेस्ट। सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन, आई मीन लाइक बिकॉज़ you've been watching all the videos, बहुत सारे वीडियोस यस। मैंने देखे। एक जैसे कैंडिडेट क्वेश्चन, बिकॉज़ सीईटी के लिए there are so many classes, pan India level, pan Maharashtra level, और बहुत अच्छी क्लासेस, लाइक 4-5 ब्रांड्स है, there all big brands. So I'm not sure whether you saw their videos or not, but would you mind giving a feedback on that YouTube video जो भी मैंने बनाई? क्या लगे तुझे स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है? Because we are in the market like from last 2 years, and I always take feedback. मैं हर एक टॉपर को, हर एक बच्चे को मैं पूछता हूँ कि भाई तुझे क्या डिफरेंस लगा, तुझे क्या फीडबैक देना चाहता है? So same question तुम्हारे लिए भी हो। So their strategies are superfluous. I must say superfluous because they never works. Like if you go 40 marks, then you are joining JBIMS. I think this is wrong notion which That's right. is there incubated in the minds of aspirant and all. Yeah, ऐसा होता नहीं, because until and unless you are not familiar with your strong points, until and unless you are not familiar with your weak points, until and unless you don't prefer topics, जैसे आप कहते थे कि पहले टॉपिक्स बनाओ उसके बाद Exactly, मॉक topic पे दो, आप focus कहते थे, तो हाँ, टॉपिक पे फोकस करो, मॉक पे नहीं, तो they are merely designating things nonsense kind of stuff in the market, because this never works. अगर आप 40 मार्क्स दोगे और आपको टॉपिक से पता नहीं, तो हाउ विल यू सेल थ्रू द मॉक यार? अब मॉक सीटी तो दूर की बात है फिर तो। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि पहले टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद व्हाट यू थिंक्स यू वांट, लाइक यू इफ यू if you are giving mocks, then mocks दो, पास्ट पेपर सॉल्व करने पास्ट पेपर सॉल्व Right. वो आपकी डिसीजन। राइट, बिकॉज ऐसे भी बच्चे हैं जैसे तेजस का, आई एम नॉट श्योर तूने टीडब्ल्यूडी देखा कि नहीं तेजस का। तेजस ने मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 मॉक दिया सीईटी के लिए, एंड ही इज 99.95% है। हाँ हाँ, तो मॉक्स कैन नॉट डिसाइड व्हिच कॉलेज, एंड तेजस इज गोइंग टू जमनालाल बजाज, नो डाउट अबाउट दैट। सो ठीक है, सो स्ट्रेटजीज आपके लिए हेल्प हुई,
कंटेंट तेरे लिए हेल्प हुआ, ठीक है, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. So more realistic perspective is something that I always try to tell students. And again, this is for all those bacha log, those who are watching this video, कि यार you need to be a little bit realistic whenever you go for your studies. कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करो, you got to be realistic because इतना इजी होता तो सब लोग कर लेता. You getting my point? अगर मान लो अगर क्यों नहीं, है ना, तो वही है. yes. Cool यार, cool. So यार ओम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुझे पूछना चाहता हूँ, what is your advice for students those who are preparing for CET? क्या CET बहुत टफ है क्या, या मैनेजेबल है, तुझे क्या लगता है? सो अगर मैं 31 परसेंटाइल से होके 98 परसेंटाइल पे आ सकता हूँ तो इट्स डेफिनेटली मैनेजेबल. What CET demands is not your knowledge and all. What CET demands is your strategies. How well you attempted paper. You should be knowing what exactly you want to attempt and you should be knowing what exactly you don't want to attempt. Exactly. हाँ, और CET यही डिमांड करता है. स्पीड क्यों होती है? स्पीड इसलिए होती है कि you should have दैट कॉन्शियस विद इन योर माइंड कि यार नहीं, दिस इज समथिंग which will increase my marks and you have to show on your attempts and all. ये भी अटेम्प्ट भी आपके अच्छे होने चाहिए. तो स्पीड, स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट, पूरा तो मैं कहूँगा स्ट्रेटेजी का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं. मेहनत का जरूरत है कि ऐसे ही हो जाता है, मेहनत करना पड़ता है. बाप रे सर, मेहनत तो अगर भाई बहुत रगड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए. सर वो तो है ही, लाइक देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. बेसिकली आपको करना ही है हार्ड वर्क. तो हार्ड वर्क कोई भी हो, जैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करना हो, सेक्शन प्रिपेयर करना हो, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, सेक्शन मॉक्स देने पड़ेंगे. राइट, ये तो होता ही है. राइट. परफेक्ट. सी बिकॉज़ यार बात ये है कि जो भी बच्चे लोग ये फ्यूचर में भी ये जो वीडियो को देखिएगा, मेरे ख्याल से what we all need to understand in today's education industry, everybody needs to understand from a student's perspective that there is no substitute to hard work. You have to work hard. मतलब you might feel things are little easy but they are not. You have to work hard. अगर इतना easy होता तो हर कोई आज मतलब जेबी के लिए मतलब 99.99% डाले तो 400-500 निकल जाते यार, ऐसा नहीं होता. Yes. And why I sort of respect you because not having इतना सारा सुख सुविधा ना होने के बाद भी तू मेहनत किया, आगे चला गया. मेरे ख्याल से तो मेरा यही मानना है 99% हार्डवर्क, 1% लक. यस. सही है. बच्चे लोग 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, बट मेरे ख्याल से ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है. एक चीज फॉलो करो, मेहनत करो, सिंपल. You were saying something. I'm sorry, I interrupted you. I will attribute my success to you only because if my preparation revolves around 4 things. First, practice, past year papers, belief, and last was your videos. Nothing more. मैंने कभी दूसरे चैनल के वीडियोस भी नहीं देखे to be sure. Like कैट से ही मतलब सोचा था कि नहीं यार, अपने को मतलब सर को ही फॉलो करना है, वही फॉलो कर दिया और मुझे रिजल्ट भी मिला. ऐसा नहीं कि क्योंकि सब मिला मेरी स्ट्रेटजी से, so that's what मिला. हाँ, क्योंकि सब मैं कभी college in my graduation I never take anything seriously. I never took anything seriously क्योंकि मेरा पॉइंटर भी ज्यादा कुछ नहीं था. Hardly somewhere I managed to surpass 7.0. Hardly 7.0. तो मतलब ज्यादा पढ़ाई वाला बच्चा नहीं था, भी 7.0 ज्यादा कुछ नहीं वैसा नहीं. मैं पढ़ाई करता ही नहीं था. पढ़ाई में करता नहीं था बेसिकली. हाँ मतलब चलो, मतलब आपको, आप भी इंजीनियर हो तो पता चलता है कि चलो यार मतलब कल एग्जाम है, आज नाइट मार देंगे, आज प्रिपरेशन कर देंगे, चलो वही, ज्यादा कुछ नहीं. जैसे सब इंजीनियर करते थे, इंजीनियर था ज्यादा. परफेक्ट यार. मैंने इसलिए कहा ये TWT इसलिए है बिकॉज यार टॉपर मतलब होते हैं यार, मतलब टॉपर है सीधे 99.99 भी है, 99.97 है, 99.95 वाले भी है. एंड जहां तक बात है ना स्ट्रेटेजी की और एक पजल की, इवन देयर आर अदर क्लासेस, वहां पे भी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी वेल, बट समवेयर डाउन द लाइन आई हैव आल्सो रिसीव्ड सर्टेन मैसेजेस एंड कॉल्स सेइंग दैट हां I did follow a couple of strategies which eventually helped me to score more than 99.9 and all that. So it feels good that strategies are helping students, but कुछ भी हो जाए at the end of the day strategy वगैरह तो help करता ही है, but यार hard work बच्चों का is the only key to success. Yes. So basically
Sorry. बेसिकली तेजस का जो वीडियो था, आपने उसका वीडियो पोस्ट किया था, तो मैंने पहले उसका वीडियो देखा। ठीक है, अच्छा। तो उसने बताया कि आपके वर्बल के स्ट्रेटेजीज दे वर्क वंडर्स। हाँ हाँ, तो पहले से मुझे पता था कि आपके, मैंने पहले से ही कॉन्ट वगैरह की वीडियोस वगैरह देखे थे, तो सोचा कि चलो यार, मतलब वर्बल भी सर्कल फॉलो करते हैं। उसके बाद मेरा वर्बल का स्कोर इट एनहांसेस, उसके बाद मेरा वर्बल का स्कोर इंक्रीज हुआ। पहले तो मेरा वर्बल मतलब फोबिया, तो मुझे भी सबके जैसा ही फोबिया लगता था, लेकिन ओके नहीं, बाद में आई इंक्रीज। ओके, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। सो यार मेरा यही एडवाइस है सब बच्चों को कि गाइस, अगर ओम कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। it is all about डेफिनेटली। hard work, or and he also comes from that sort of a मस्ती वाला बैकग्राउंड कि चल इंजीनियरिंग थोड़ा सा एंजॉय कर हाँ लेंगे, हाँ। थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं होता है। बट हाँ, हम्म मेहनत के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है दुनिया में। तो जो भी बच्चे लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो भी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, yeah, that is the only advice that I want to tell you guys is that slog, do work हम्म hard, and definitely success will be yours, right? And this guy is a great example यार। मतलब जब मैंने इसका स्टोरी सुना, I was like was shocked। मतलब मुद्दतों के बाद मैंने ऐसा कोई बच्चा देखा कि भाई मतलब इतना sort of प्रॉब्लम्स होने के बाद भी you sort of overcame on that. Salute to you man. Om, thank you so very much for sharing your story with us. I'm very sure बहुत सारा बच्चा ये भरोसा रखेगा कि यार तुमको ज्यादा मटेरियल 2-2 3-3 किलो 5-5 10-10 किलो का मटेरियल नहीं चाहिए। छोटा सा मटेरियल पकड़ो, एक मेंटर नहीं पकड़ो चाहिए। और बस मेहनत करो। Simple. हम्म। Thank you so much, Om, for joining in, and definitely I hope थैंक a lot यू of people will like सर। this video. And I wish you all the very best. And let's यस, hope थैंक कि यू अगले सर, साल थैंक वापस यू। इसी टाइम पे हम DWT करेंगे। श्योर Yeah. Thank you श्योर so much. श्योर। Thanks, man. या Thanks a lot. थैंक यू Bye सर। bye. हाँ।